اب آپ کو بتائیں یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خوردونوش نایاب، ملتان کے شہری سبسڈائزڈ اشیاء سے محروم، یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے آٹے، گھی اور چینی کی فراہمی بند ہو گئی، شہری شکوہ کنان اور ان کا مزید کیا کہنا ہے، مزید بتا رہی ہیں سہیرہ طارق۔ جی، یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام ریلیف کے لیے ترس گئے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو پیکج تھا جس میں سستا آٹا، گھی اور چینی رجسٹرڈ افراد کو ملتی تھی، لیکن اب وہ سلسلہ عید کے بعد سے ہی، ماہ رمضان کے بعد سے ہی بند پڑا ہوا ہے، اور جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ تھے ان کو یہاں کر مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دوسری جانب جو سستا آٹا ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر وہ بھی دستیاب نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں۔ پہلے یہ چیز رمضان شریف سے پہلے سہولت تھی، اس کے بعد انہوں نے یہ بند کر دی ہے۔ ابھی مین جو ایشو آ رہا ہے، جو اہل تھیں بے نظیر انکم سپورٹ خواتین، اگر وہ کوئی اور چیز بھی پرچیز کرنے آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ اہل ہیں، آپ کو کوئی چیز بھی نہیں مل سکتی۔ ٹھیک ہے انہوں نے BISP بند کیا، مگر ان کو مزید جو اشیاء ہیں، چینی آ رہی ہے، گھی آ رہی ہے، جو اس ٹائم ریٹ ہے سبسڈی کے بغیر، وہ اس ریٹ پہ تو ان خواتین کو ان کو دینا چاہیے، ان کو یہ نہیں دے رہے۔ اور آٹا جو ہے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، جب آتا ہے تو اس کے ساتھ 1000-1500 کی ایکسٹرا شاپنگ کرنی پڑتی ہے، سامان لینا پڑتا ہے، پھر آٹا دیتے ہیں۔ آپ نے اسٹور والے آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ وہ خواتین دیگر اشیاء کی شاپنگ کیوں نہیں کر سکتی؟ نہیں، وہ کہتے ہیں جی اگر آپ جیسے کہ ابھی میری وائف ہے، میں آیا ہوں سامان لینے، تو میں نے اپنی وائف کا CNIC لکھوایا ہے کہ اس پر آپ مجھے سامان دے دیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کی وائف چیک کیا ہے BISP اہل ہے، تو آپ ان کے ID کارڈ پہ سامان نہیں پرچیز کر سکتے، تو آپ اپنے ID کارڈ پہ لیں، تو میرے ID کارڈ پہ وہ دے دیں۔ ٹھیک ہے جی، جو ID کارڈ کی سہولت شہریوں کو فراہم کی گئی ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر خریداری کے لیے، وہ بھی ان کے لیے زحمت بن چکی ہے۔ آٹے کی اویلیبلٹی کی بات کی جائے تو وہ مختلف سٹورز پر زحمت بن رہی ہے۔ بہت شکریہ سہیرہ طارق آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں مہنگائی کا نہ تھمنے والا سلسلہ جاری، میاں والی کی عام مارکیٹ میں آٹے کے نرخ آسمان پر پہنچ گئے، یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر آٹے کے لیے شہریوں کی قطاریں، اس حوالے سے مزید جانتے اختر مجاز سے۔ جی بالکل، عام مارکیٹ میں آٹا کے مہنگے ہونے کی وجہ سے یوٹیلیٹی سٹور کے باہر خریداروں کا رش لگ گیا۔ عام مارکیٹ میں 10 کلو کا تھیلا 1200 روپے میں مل رہا ہے، اور 20 کلو کا تھیلا جو ہے وہ 2000 روپے میں دیا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس 650 روپے پہ یوٹیلیٹی سٹور پہ آٹا دیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ کافی ساری لائن لگی ہوئی ہے خریداروں کی، اس حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ کیا کہیں گے، کافی سارا فرق ہے عام مارکیٹ میں اور یہاں پہ، کیا کہیں گے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، مارکیٹ میں 10 کلو والا تھیلا 1200 روپے کا ہے، 20 کلو والا 2000 کا ہے، تو ہم غریب آدمی ہیں، یہاں سستے ہونے کی وجہ سے ہم یہاں لینے آئے ہیں۔ اب یہاں رش میں گرمی میں بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر ایک اصول چل رہا ہے کہ گٹو کے ساتھ ایک صابن کی چکی بھی دے دیتے ہیں، جو کہ ہم نے نہیں لینی، تو یہ اس قسم کی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے آٹا لینا ہے تو ہمیں آٹا ہی دیا جائے نا، ساتھ ہمیں صابن تو نہ دیا جائے۔ ہم نے جو صابن لینا ہی نہیں ہے یا کوئی ماچس کا بنڈل دے دیا جاتا ہے، تو وہ چیز، یہ چیز جو نہیں ہونی چاہیے، ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آٹے کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز اور بھی خریدنی پڑتی ہے، وہ ضروری ہے۔ ایک اور بھائی بھی ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ آپ بتائیے گا، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر ہمارا ایک ہی کہنا ہے کہ ہمیں صرف اگر ہم آٹا لینے آئے ہیں تو ہمیں آٹا دیا جائے، نہ کہ کوئی صابن یا کوئی سرف یا کوئی چیز۔ اچھا چلے وہ لے بھی لیتے ہیں تو سر اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ کل ہم ادھر یوٹیلیٹی سٹور پہ گئے تھے کہ 650 کا تھا آٹا، اور ایک صابن کی تھیلی دی ہے تو 780 روپے انہوں نے کاٹ لیے ہیں، یعنی کہ 140 کا 130 کے حساب سے صابن دے رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جی، شہریوں کی جانب سے یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر آٹے کے ساتھ دیگر چیزیں خریدنا ضروری ہیں یا دے دی جاتی ہیں، وہ ایک تو مہنگی ہیں، اس کے علاوہ چیزیں خریدنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ اختر مجاز آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں خاریوال یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی اور آٹے کی عدم دستیابی، شہری آٹے اور چینی کے حصول کے لیے خوار، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد ندیم مغل سے۔ جی ندیم مغل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ایک جانب اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، دوسری جانب اگر بات کی جائے اسٹور پر آٹا اور چینی کی عدم دستیابی کے باعث بھی شہری خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اور بڑھتی مہنگائی کے باعث بھی شہریوں کا کہنا ہے کہ گزر بسر جو ہے مشکل ہوا ہے۔ تو مزید پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہیں جو خریداری کے لیے آئے ہیں، ان سے جانیں گے اس حوالے سے۔ بتائیے گا کیا کہیں گے، ایک تو خاص طور پہ اسٹور پر آٹا اور چینی دستیاب نہیں ہے، دوسرا جو اوورآل اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بڑھی ہیں اس پر؟ مہنگائی سے تو جی آج کل ہر بندہ ہی پریشان ہے، ظاہر ہے۔ تو باقی اسٹور پہ یہ ہے کہ کافی چیزوں پہ ریلیف ملتا ہے یہاں پہ، لیکن بس پریشانی وہی کہ آٹے کے لیے زیادہ پریشانی ہوتی ہے آج کل نا، آٹا کیونکہ عام دکانوں پہ بھی شارٹ ہوتا ہے، اگر ہے تو وہ ریٹ اتنا ہوتا ہے کہ بندہ غریب آدمی تو نہیں لے سکتا اس کو، سیدھی بات ہے۔
स्टोरों पे आ जाते हैं तो कभी मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, चले जाते हैं फिर वापस। बाकी ठीक है, चलता है। जी, मुश्किलात तो हैं यकीनी तौर पर, और ये शहरियों का ये कहना है कि इस बढ़ती महंगाई के बायस जो घर का गुजर बसर भी मुश्किल है। एक खातून भी वहाँ से मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी कर रही हैं, इनसे जानेंगे। जी मैडम बताइएगा कि बढ़ती महंगाई पर एक घर चलाना कितना मुश्किल हो चुका है? जी बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही क्या कहें, इतनी महंगाई है कुछ नहीं कह सकते। जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बात करें स्टोर पर आटा और चीनी के दस्तयाबी के हवाले से, तो इस पर बात करेंगे। स्टोर के मैनेजर हमारे से मौजूद हैं, जाने क्या कहेंगे। आटा और चीनी अदम दस्तयाबी है, कब तक आएगी, शहरियों को क्या खबर देंगे? आटा इंशाल्लाह कल आ जाएगा सर, हो सकता है आज ही आ जाए। चीनी भी 1-2 दिन मतवक्के है, इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। जी शहरियों को ये खबर दी जा रही है कि आटा की दस्तयाबी जो है वो आज या कल हो जाएगी, लेकिन चीनी की अदम दस्तयाबी और आटे की अदम दस्तयाबी के बायस जो है शहरियों को मुश्किलात का सामना होगा। जी नदीम मुगल, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। अब आपको पता है एलपीजी माफिया बेलगाम, हुकूमती रिलीफ आवाम की पहुंच से दूर। एलपीजी के सरकारी और मार्केट के नरखों में तजाद, दुकानों पर एलपीजी 280 रुपए में किलो में फरोख्त होने लगी। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पाकिस्तान मुल्तान में भी एलपीजी माफिया जो है वो बेलगाम हुआ है। हुकूमती और सरकारी निर्ख की अगर बात की जाए तो 238 से 240 रुपए फी किलो एलपीजी का सरकारी निर्ख है, लेकिन मार्केट में एलपीजी माफिया जो है वो बिल्कुल बेलगाम होने की वजह से 270 से 280 रुपए फी किलो तक दुकानों पर फरोख्त हो रहा है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, खरीदार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जनाब, सरकारी निर्ख तो 240 रुपए, दुकानों पर 280 270 रुपए फरोख्त हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर जी हम क्या बताएगा, बात यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया और ये इनपुट हुकूमत ने तो बहुत हालात ख़राब कर दिया। फिर अब जो रेट पे मिलता था ना उससे तकरीबन 3-4%, मतलब 3-4 से जो है ना वो महंगा हो गया। ठीक है, लोग मानते नहीं है, हुकूमत जो अपना मर्जी कर रहे हैं वो कर देते हैं। महंगाई इसी हाल पे हो गया कि लोगों का जो है ना कमर तोड़ दिया। ग्राहक भी मौजूद थे हमारे साथ, दुकानदार मौजूद हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे जनाब। पीछे से सरकारी निर्ख जो है वो 238 240 रुपए, जहाँ से आप लेकर आते हैं उनका क्या रेट होता है और यहाँ पर आपका जो है क्या क्या कहना चाहेंगे आप? सर जो पीछे से जो रेट आएगा हमने तो उसी की निस्बत देना ना। अब गाहक आके हमें बोलता है कि आप महंगा दे रहे हो, हम कैसे महंगा देंगे? जो हमें पीछे से अगर सस्ती मिलेगी तो गाहक को हम रिलीफ देंगे, अगर हमें महंगी मिलेगी तो हम कैसे बेचेंगे? अब 5 रुपये मार्जिन, 5 रुपये भी हम क्या करेंगे? दुकान का किराया है, में हमारी दिहाड़ी है, फिर अखराजात और भी हैं, बिजली के बिल हैं, तो इसमें तो नहीं पूरा होता। जी दुकानदारों की जानिब से कहा जा रहा था कि रेट जो हैं वो पीछे प्लांट से ही काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। वहाँ से सरकारी निर्ख जो है वो 238 240। अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात भी महंगाई की लपेट में। जलालपुर में अद्वियात की कीमतों में 20 से 30% इजाफा। मजीद तफसीलात जानते हैं राना शौकत से। आए रोज़ की बढ़ती महंगाई से अशिया खुदनोश की कीमतों में इजाफा होने पर जहाँ पे शहरियों को मुश्किलात का सामना, तो वहीं पर जो है महंगाई ने इंसानी जानें बचाने की जो अद्वियात हैं वो भी अपनी लपेट में ले लिया है। न सिर्फ अद्वियात महंगी हुई है बल्कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं वो नायाब भी हो चुकी हैं। खासकर इंसुलिन की बात की जाए तो यहाँ पर अद्वियात ना मिलने और महंगी मिलने के बाद जो शहरी हैं उनको खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कोई शहरी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात कर रहे थे। जी भाई, अद्वियात महंगी हो रही हैं, क्या कहें? जी ये दवात पहले तो सस्ती थी, लेने आते थे, आप तो देखें ना रोज़ बरोज़ महंगाई हो रही है। अभी मैंने गंदम निकाली है थोड़ी 5-6 किलो, वो बेच के आया हूँ। उसे बेच कर जो पैसे थे मैं दवाई लेके जा रहा हूँ। बच्चों का खाना भी ऐसे है नहीं पूरा हो रहा हमसे। देखिए महंगाई इतनी हो रही है, इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन की बात पे अपना पतंगर बना रहे हैं हुकूमत वाले, पता नहीं क्या होता है आगे। हम तो गरीब आदमी मार रहे हैं भूख से भी। अद्वियात महंगी हो गई हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सर आप बताइएगा कि कौन कौन सी अद्वियात जो है वो इस वक्त शार्ट हैं और जैसे जो शहरियों को अच्छा ज़रूरत है? हाँ, सबसे बुनियादी तो है इंसुलिन, उसके बगैर तो एक दिन भी नहीं मरीज़ का गुजरता। ठीक है, एक कंपनी है वो वाइंड अप करके चली गई है, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन क्योंकि मीडिया पे अलाउड नहीं होता नाम लेना, लेकिन वो बहुत बड़ी कंपनी थी, तकरीबन आधा पाकिस्तान उसी की इंसुलिन यूज़ करता था। ठीक है, उसके बाद दूसरी हैं 2-3 अल्टरनेटिव, ज़ाहिर है उन पे बर्डन ज़्यादा बना तो उन्होंने भी अपनी सप्लाई शॉर्ट कर दी है। पूरा मुल्क है, इतनी सारी यानी कि इंसुलिन उन्होंने पर डे के हिसाब से निकालनी होती हैं
और वो भी शार्ट हो गई। अच्छा, उसके बाद एक मेडिसिन है टेग्राल, ठीक है, वो मिर्गी के मरीज़ के लिए, दिमागी मरीज़ के लिए, वो भी उसके बगैर भी एक दिन नहीं गुजरता। मतलब ये है कि 3 टाइम अगर एक मरीज़ खाता है, चलो वो एक टाइम भी खा ले उसका दिन गुजरता है। अगर वो एक टाइम भी नहीं खाएगा तो वो खुद भी अपनी ज़ात के लिए भी खतरा बन जाता है और बाकी लोगों के लिए भी। ठीक है जी बिल्कुल, इंसुलिन और मिर्गी की अद्वियात समेत बच्चों के जो दूध है वो भी महंगे होने के साथ साथ नायाब हो चुके हैं, जिससे जो शहरी उन्हें खास मुश्किलात का सामना करना कीमतों में इजाफा हो गया। राना शौकत, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, महंगाई की कारोबार जारी। गुज़िश्ता एक माह में लकड़ी की कीमत में होशरबा इजाफा। मुल्तान की लकड़ मार्केट में लकड़ी 650 से 750 रुपये फी मन पर पहुंच गई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे शकील सुल्तान से। जी, मुल्क पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान बरपा है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आए रोज हर चीज़ की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मुल्तान शहर में लकड़ियों की कीमत की, तो उसमें भी होशरुबा इजाफा देखा गया है। गुज़श्ता एक मंथ में 550 रुपये से बढ़कर लकड़ी की जो कीमत है वो 700 रुपये फी मन तक पहुंच गई है। उसका एक असर कारोबार पर भी पड़ रहा है और आम शहरी की जो ज़रूरत है उसके वाले से बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। मेरे साथ दुकानदार हजरात मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइए कि लकड़ी की कीमत में कब से कितना इजाफा हो रहा है और कितना असर पड़ रहा है इस हवाले से? हमारा काम है बाहर से लकड़ी हम ले आते हैं। लकड़ी पेट्रोल की वजह से महंगी हो गई, पीछे से महंगी हो गई है, कम अज कम डबल कीमत हो गई है इस टाइम। रोजगार है, रोजगार नहीं है, काम बंद पड़े हैं। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मशीन चलाते हैं, बाकी काम बंद रहता है। मजदूर आदमी हैं, हम देख के रोते हैं उनको कि उनके रोजगार, बच्चों का कहाँ से पेट भरेंगे, वो भूखे हैं। कहते हैं हमें काम दो, कहाँ से काम दें? इतनी महंगी लकड़ी हो गई है और ये बेरोजगारी है, हफ्ते में 2 दिन सारा काम होता है। लकड़ी की कीमत में मुसलसल इजाफे ने दुकानदारों को भी परेशान किया हुआ है। खरीदारों से भी पूछते हैं, आम शहरी जिसने लकड़ी खरीदनी है, फर्नीचर बनाना होता है, दीगर ज़रूरियात होती हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं? यही मुश्किलात है सर, देख लो आपके सामने हालात हैं, देखना जहाँ से लेके जाते यही हाल है, आगे लबत भी नहीं है, यहाँ से लेके जाते आगे भी कुछ भी नहीं हो रहा। महंगाई साफ ज़रा लेना तो पड़ता है ना, लेकिन मजबूरी है, बहुत तंग हो चुके हैं। ये हम तो घर के वाले अलहदे सुनते हैं, इधर अलहदे सुनते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, हमारी कुछ मजबूरी समझे, हमारे कुछ दर्द को समझे, जो हमारे के अंदर दर्द है। अल्लाह से फिराद करते हैं, लेकिन इनको तो कुछ भी नहीं है, मेहरबानी कर। आम शहरी और ताजर हजरात जो हैं वो फरियाद कर रहे हैं। आम शहरी शदीद परेशान है। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका अपडेट के लिए। महंगाई के पेदार पे वार जारी। मुल्तान में लेडीज मैक्सी और लहंगे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मजीद जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, महंगाई की सूरत हाल की बात की जाए तो दीगर अशिया के साथ साथ लेडीज़ फैंसी ड्रेसेस और ब्राइडल सूट्स जो हैं वो भी महंगे दामों फ़रोख्त होने लगे हैं। ब्राइडल की जो मैक्सी और जो लहंगा है ये भी इस वक्त, इनकी कीमतें भी इस वक्त आसमान से बातें करने लगी हैं। बात करने के लिए रहीम सेंटर के सीनियर नायब सदर खालिद महमूद मलिक हमारे हमराही मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कीमतें जो हैं वो इस वक्त ब्राइडल सूट्स की आसमानों से बातें कर रही हैं, ये कीमतें क्यों महंगी हुई हैं और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस सवाल से क्या राय रखते हैं? देखें जी, जब से ये हुकूमत में आपस में इख्तलाफ हुआ सियासतदानों का, महंगाई अरूज पर आ गई है। अब देखें ये हमारा जो ये मटेरियल है ना, ये अब हमारे मुल्तान से या पाकिस्तान से नहीं आता, ये आता है इंडिया से या चाइना से। जब से डॉलर 300 के लगभग हुआ है, इनकी कैपेसिटी समझ लें, इनकी लागत हमारी डबल हो गई है। मटेरियल पहले जो लहंगे के ऊपर से 40 से 50 हज़ार रुपये का लगता था, अब वो लाख रुपए का मटेरियल लगता है। जाहिर बात है, अगर लाख रुपए का किसी भी दुकानदार को लहंगा एक घर पड़ता है, वो 1,20,000 25,000 से कम नहीं बेचेगा। अगर वो बेचेगा तो नुकसान में जाएगा। अगर 1,25,000 का हम लहंगा ग्राहक को बताते हैं तो कस्टमर 2 मिनट के लिए भी नहीं दुकान पे बैठता। खालिद भाई, क्या समझते हैं इस महंगाई को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे जो है वो इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है? देखिए, जब तक हमारी जो ये सियासी तंजीमें हैं, जैसे नून होगी, काफ होगी, PTI होगी, पीपल पार्टी होगी, जब तक ये एक लॉबी पे काम नहीं करेंगे ना, तो इस मुल्क में ये जो बहरान आया हुआ ना, ये ख़त्म नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सियासी अदम इस्तेकाम के बाइस मुल्क की सूरत हाल जो इस वक्त है वो बहरान का शिकार है। हुकूमत को चाहिए एक पेज पर इकट्ठे हो। रमजान अपडेट के लिए शुक्रिया। इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी की गफलत की इंतहा। बहावलनगर शहर का मेन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 15 रोज से गैर फाल। शहरी पीने के साफ पानी से महरूम। मजीद जानते हैं कासिम अली शेख से।
जब बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब की वाज़ेह हदायत के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी बहावन नगर की अदम तवज्जो, गफलत और लापरवाही की वजह से शहर में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो अक्सर ख़राब है, जिसकी वजह से शहरियों को साफ़ पीने के पानी की शदीद किल्लत का सामना है। अगर हम बात करें बहावन नगर के पानी की, तो बहावन नगर का पानी जो है वो कड़वा होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात है, जबकि जो वाटर सप्लाई का निज़ाम है वो भी फरसूदा है। फरसूदा पाइप की वजह से मुज़रे से पानी पीते हैं, लेकिन जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो भी, उनकी हालत भी अब्तज़ार है। शहरियों से बात कर लें, आप बताइएगा ये कब से ख़राब है और क्या कहते हैं आप? सर ये 15 दिन से ख़राब है, डेली आ रहे हैं, पानी शहर में मिल नहीं रहा, गंदा पानी है, जहाँ जाते हैं गंदा पानी है। रोज़ सुबह आते हैं, गर्मी का मौसम है, परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हो गए हैं, बच्चों के पेट में दर्द है, कभी कहीं लेके फिर रहे हैं, कभी कहीं लेके फिर सर हम सर बड़े परेशान हैं। फिर हुकूमत से क्या कहते हैं? हुकूमत से कहते हैं कि हमारे हाल पे मेहरबानी करें, रहम करें, बस खुदाया मेहरबानी करें। गर्मी का मौसम है, इंतहा परेशान हम लोग हैं, एक पानी है वो भी नहीं हमें मिल रहा है। आप ज़रा दिखाएं हमें चेक करा के कि पानी किस तरह जो है, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके। तो इस वक्त ये वाटर ये टूटी चला के देखते हैं, लेकिन जो पानी है वो नहीं आ रहा। बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 दिन से जो है वो यहाँ इसके वाटर फिल्ट्रेशन जो है वो ख़राब है, और म्यूनसिपल कमेटी भावन नगर जो कि चंद कदम के फासले पर इसका मेन दफ्तर वाक़ है। लेकिन कासिम अली शेख, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, करोड़ लाल ईस्ट भक्का रोड का काम सुस्त रवि का शिकार, ठेकेदार सड़क पर पत्थर डालकर गायब, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, हादसात में इजाफा, सड़क पर डाले गए नोकीले पत्थरों की वजह से कीमती गाड़ियां खटारा बनने लगी। मजीद जानते हैं मोहम्मद आसिफ खान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं करोड़ लाल ईसन बक्खर रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ठेकेदार की गफलत और लापरवाही जो है सामने आ चुकी है। यहाँ पर काम जो है सुस्त रवि का शिकार है। ये मेन शाहराह है जो कराची को पेशावर से मिलाती है। इस शाहराह पर कुछ अरसा कबल जो है काम का आगाज़ किया गया है, लेकिन काम जो है अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से यहाँ पर कीमती गाड़ियाँ जो है वो खटारा बन रही हैं, और जबकि हादसात भी जो है वो बढ़ चुके हैं। यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आप क्या कहते हैं, यहाँ पर हादसात मामूल बन चुके हैं, क्या कहना चाहिए? जी, हादसात तो जो हैं वो तो हो रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे क्राइम की जो शरह है वो बढ़ रही है। जैसे ही यहाँ पे लोग गुजरते हैं तो रोडे की वजह से जो खड्डे बने हुए हैं उनकी वजह से मोटरसाइकिल वाले खास तौर पे जब उनकी स्पीड कम होती है तो जो क्रिमिनल लोग हैं वो उनको आके रोकते हैं, उनसे मोटरसाइकिल छीन लेते हैं, उनसे पैसे खींच लेते हैं, उनसे मोबाइल नकदी वगैरह जो है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है, खास तौर पर जो करोड़ से बक्खर रोड की तरफ जाने वाले लोग हैं। ये 50 किलोमीटर टोटल है और उसमें से 6-6.5 किलोमीटर बनाया गया है। इसके आगे जो है सारा, क्योंकि ये नशेबी इलाका है तो यहाँ पे जो है ना क्राइम की शरह बढ़ जाती है। जो गाड़ियों का है वो आपके सामने सूरत हाल है कि यहाँ पे 112 की जो सहूलियात हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुँच रहा है, एम्बुलेंस सर्विस जो है उसको नुकसान पहुँच रहा है। लोग यहाँ पे रजू कर पिशावर तक, ये मेन रोड है जो इंडस रिवर के ईस्ट की तरफ है, मशरकी साइड पे है, तो अब इसकी वजह से जो है ट्रैफिक का रुझान यहाँ पे कम हो गया है। उसकी वजह से जहाँ पे जो लोगों का रोजगार था वो भी मुतासर हो रहा है। अरबाब अख्तियार से और वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त है कि आप बराए मेहरबानी इस जो 25 किलोमीटर का एरिया है कम से कम इसको बना दें ताकि जो लोगों के मसाइल कम हो सके। जी बिल्कुल, ये जो सड़क है ये अभी तक यहाँ पर काम का आगाज़ नहीं किया गया। यहाँ पर गाड़ियाँ जो है दिन के औकात में भारी गाड़ियाँ जो है यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन मोहम्मद आसिफ खान, अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, गुज़िश्ता रात मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तेज़ हवा और आंधी के बायस आम के बागात को नुकसान। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी गुज़िश्ता रात आंधी की वजह से मुतादिद इलाकों में नुकसानात सामने आए हैं। 5 अफराद ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुंचे, तो दूसरी जानिब जो आम के बागात हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि इन दिनों आम को बूर लग चुका होता है और मुजफ्फरगढ़ आम की पैदावार के हवाले से अपना एक मकाम रखता है। गुज़िश्ता साल भी मौसमियाती तब्दीली की वजह से खासा नुकसान हुआ। किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा इस हवाले से जाने कितना नुकसान है जी अम्बा को अंधारियाँ? बाबा इतना नुकसान थे, इतना अंधेरी आई है, इतना अंधेरी आई है ना कि तुम्हारी सोच को लो, इतना कर के अम्बा तले मान के तो देखो तले आम भी आम के पे। अच्छा। आधी आधे पिछले साल दिन इस बात इन साल भी कम आम कम थी सन। कितनी पैदावार घट है पिछले साल? ये तकरीबन 3% तक कम आई पिछले साल। तो गवर्नमेंट ने कोई महकमा ज़राअत ने कोई राबता किया उन तक किसानों नाल? नहीं, इतना तो कोई नहीं है, कोई बंदा नहीं आया अज नहीं। असा तो नहीं दिखा कहीं बाग चाहे वधिया सन या गवर्नमेंट का बंदा आया वधा असा नहीं दिखा। मौसम कितना नुकसान दे साल? सोना मौसम सही चलता पे, अंधेरी नुकसान कर गई है बाग का। जी बिल्कुल, बागात को अंधेरी का नुकसान है। इस हवाले से किसानों का ये कहना है कि मौसम तो ठीक है, अलबत्ता। आमिर डोगर, अपडेट के लिए शुक्रिया। खबर शामिल करें खानपुर से। खानपुर में गुज़िश्ता रात तेज आंधी और बारिश के बाद शहर में बिजली
شہر کے مختلف علاقوں میں 8 بجلی کے پول اور 17 ٹرانسفارمر جل گئے۔ SDO کا کہنا تھا کہ 13 علاقوں کی بجلی سپلائی بحال کر دی گئی۔ مزید 3 علاقوں میں مرمتی کام جاری ہے۔ میپکو کا تمام عملہ دن رات بجلی سپلائی کی بحالی میں مصروف ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، خانپور میں گزشتہ رات تیز آندھی اور بارش کے باعث شہر میں بجلی معطل۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 8 بجلی کے پول اور 17 ٹرانسفارمر جل گئے۔ SDO کا کہنا ہے کہ 13 علاقوں کی بجلی سپلائی بحال کر دی گئی۔ مزید 3 علاقوں میں مرمتی کام جاری ہے۔ اب آپ کو بتائیں، فورٹ عباس میں گورنمنٹ بوائز اسکول جانوروں کے باڑے میں تبدیل۔ اسکول میں تعلیم دینے کے بجائے اساتذہ اور ملازم مویشی پالنے لگے۔ اسکول میں جانوروں کے باندھے فوٹیج روہی کو موصول۔ محکمہ تعلیم خوب خرگوش کے مزے لے کر دفاتر تک محدود۔ اہل علاقہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اب آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ فورٹ عباس میں گورنمنٹ بوائز اسکول جانوروں کے باڑے میں تبدیل۔ اسکول میں تعلیم دینے کے بجائے اساتذہ اور ملازم مویشی پالنے لگے۔ اسکول میں جانوروں کے باندھنے کی فوٹیج روہی کو موصول۔ محکمہ تعلیم خواب خرگوش کے مزے لے کر دفاتر تک محدود۔ شہر اولیا میں سجنے والے کسان میلے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ میلے میں ملک کی سب سے بڑی زرعی نمائش اور زراعت کانفرنس ہوگی۔ قاسم باغ اسٹیڈیم میں مارکی لگ گئی اور سٹالز لگنے کا سلسلہ بھی جاری۔ کسان میلے کی تیاریوں کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں علی ریاض سے۔ شہر اولیا ملتان میں بہت جلد جو ہے کسان میلہ جو سجنے جا رہا ہے۔ کسان میلہ جو ہے 19, 20, 21 مئی کو 3 روز جاری رہے گا۔ اور اس کسان میلے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جہاں ملک کی سب سے بڑی زرعی نمائش ہوگی، وہیں پر دوسری جانب یہاں پر جو 2 روز تک جو کانفرنس ہے 20 اور 21 کو وہ بھی ہوگی۔ اس سوال سے بات کی جائے تو آم، کپاس اور کچن گارڈننگ اور جو دیگر موضوعات ہیں اس میں یہاں پر کانفرنس ہوگی۔ میرا کیمرامین وسیم ریاض اگر آپ کو یہاں کے مناظر دکھائے کہ ابن قاسم اسٹیڈیم میں یہ جو مارکی یہ لگ چکی ہے اور یہاں پر تیاریاں جو آخری مراحل میں سٹالز بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں اور کسانوں کے لیے یہاں پر نہ صرف یہاں پر زرعی کانفرنس میں ان کی رہنمائی ہوگی بلکہ جو یہاں پر زرعی کمپنی ہیں ان کی جانب سے بھی موجودہ جو دور کے عین مطابق جو شعبہ زراعت میں ہونے والی ترقی اور نیو ٹیکنالوجی ہے اس کو متعلق یہاں پر سٹالز لگائے جائیں گے۔ 100 سے زائد یہاں پر سٹالز ہوں گے جس کے ذریعے سے نہ صرف فارمرز جو ہیں، کاشتکار جو ہیں، ان کو جو جدید طریقہ کار ہیں کاشت کے ان سے روشناس کروایا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو محققین ہیں وہ زرعی کانفرنس میں کاشتکاروں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے موجودہ حالات کے پیش نظر نہ صرف اپنی پیداوار میں اضافہ کرے بلکہ اپنی پیداوار میں اضافہ کر کے اور اس ملک کو قوم کی ترقی میں کس طرح اہم کردار ادا کرے۔ تو یہ کسان میلہ جو سجنے جا رہا ہے جس میں کاشتکار جو خاصا بڑی توجہ کا مرکز یہاں پر رہیں گے۔ اس میں اگر بات کی جائے تو تینوں روز جو فارمرز ہیں ان کو بھی اور یہاں پر سٹالز میں کے حساب سے جو ہے ان کو اعزازات بھی، انعامات بھی دیے جائیں گے، ایوارڈز بھی دیے جائیں گے۔ بہت کل یہ میلہ سجنے جا رہا ہے اور ابھی تیاریاں جو آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں جو کہ کاشتکاروں کے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہوگی جہاں پر وہ ایک چھت تلے آئیں گے، جہاں پر زرعی کمپنیوں سے لے کر جو مختلف اداروں کی تحقیقاتی چیزیں ہیں وہ بھی یہاں پر نمائش کے لیے ہوگی۔ جس میں اگر بات کی جائے محکمہ زراعت کے حوالے سے کافی چیزیں اقدامات ہوں گے کہ شعبہ زراعت سے تعلق رکھنے والے تمام تر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ایک چھت تلے جمع ہوں گے، جس کا مقصد صرف یہ ہوگا ملک و قوم کی ترقی، زراعت جو کہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی اور معیشت میں خاصا اہم کردار ادا کرتی ہے اس کو بہتر بنانا۔ اور اس کے ساتھ جو بہتر چیزیں یہ ہوں گی کہ ایک فارمر جہاں پر آئیں گے بھی، سیکھیں گے بھی اور جہاں پر جو سیکھ کر جائیں گے اس کے ذریعے سے اپنے جو فارم ہیں، اپنے کھیت ہیں اس میں بہتر طریقے سے کارکردگی کر کے پیداوار حاصل کریں گے زیادہ۔ علی ریاض اپڈیٹ کے لیے شکریہ۔